2025. We have connected here to listen to the eminent doctors from different medical colleges and institutes who will be sharing their insights. We'll be starting with the program shortly. Please join your hands together as we welcome our distinguished speakers of the day. From Hillview, we have Dr. Rupal Agrawal. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the esteemed guests, faculty members, participants, and obviously my dear students. We have gathered here for the purpose of making the students, faculties, and the society prone. We have gathered here so that we can celebrate the Cancer Day in a motive so that things can be distributed, the knowledge of the experts can be distributed to the society. Before, we are presided by our Honorable Vice Chancellor, Professor Manuka Khanna ma'am. We have the eminent speakers, the doctors from various institutes. To request Professor S.P. Singh sir, Dean, Faculty of Engineering and Technology, and Professor Pushpendra Kumar Tripathi sir, Director, Institute of Pharmaceutical Sciences. Meanwhile, we have our Honorable Vice Chancellor ma'am joining us in the program. Please join your hands together. A very good afternoon, ma'am, and all the esteemed dignitaries. May I request the esteemed dignitaries to please take their seats on the dais. Let us now invoke the blessings of Almighty through the traditional lighting of the lamp, a symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. I request our Honorable Vice Chancellor Madam and respected dignitaries to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. Ma'am, please do the honors. Jaya Saraswati Devi Namo Varde Varde Jaya Saraswati Devi Namo Varde Varde Sare Gare Sadha Sare Ga Pa Ga Dha Pa Ga Re Sadha Sare Ga Ga Sadha Sare Ga Jaya Veera पुस्तक धारिणी हो जय ज्ञान पुंज जगहारिणी हो जय वीरा पुस्तक धारिणी हो जय ज्ञान पुंज जगहारिणी हो जय सरस्वती देवी नमो वरदे वरदे जय सरस्वती देवी नमो वरदे सारे गरे साध सारे गा पा गा धा पा गा रे साध सारे गा गा साध सारे गा जय श्वेत वस्त्र आसीना हो श्वेतांबर करुणासीना हो जय श्वेत वस्त्र आसीना हो श्वेतांबर करुणासीना हो जय सरस्वती देवी नमो वरदे जय सरस्वती देवी नमो वरदे वरदे. Thank you all the dignitaries. Next, a tribute to the values and spirit that bind the University of Lucknow together. I request everyone to please stand in respect of our university kuldeep. शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को नीति जिंदगी के सीखे जिसके आंचल में गुणे मंत्र सिद्धांत जहाँ विज्ञान कला के खुलते नए क्षितिज बहुरंगी जहाँ निरंतर मिलती विविध दृष्टियाँ अनगिन विषयों पर विगत हमारा मस्तक इस विद्या मंदिर को वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को भाव बुद्धिमन होते विकसित जहाँ हमारे मूल सभ्यता संस्कृति के हो मुखरित सारे
अर्पित पुष्प हमारे इस कर्म भूमि को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। करते प्रण आज जहाँ भी हम जाएंगे, खुशबू इस परिसर की सुंदर फैलाएंगे, उन्नत भार करेंगे इसका कर्म वचन से, जीवन आलोकित कर देंगे शांति प्रेम से। अर्चन नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। Thank you, dear students. To officially welcome our guest and set the tone for today's event, may I invite Dr. Rupal Agarwal, Trustee, Hellview Education and Charitable Trust, to deliver her welcome address. Ma'am, stage is all yours. नमस्कार। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं मंच पर मंचासीन कार्यक्रम की संरक्षक श्रीमती मनुका खन्ना जी, सम्मानीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय डॉक्टर R.K. सिंह जी, डायरेक्टर उदी कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर S.P. सिंह जी, डीन FOET, डॉक्टर पुष्पेंद्र त्रिपाठी, डीन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, सभी सम्मानित वक्तागण, डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव, डॉक्टर हेमंत कुमार अग्रवाल, डॉक्टर शैली महाजन, डॉक्टर पूजा सिंह, आदरणीय शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के इस गरिमामयी परिसर में उपस्थित होना हमारे लिए अत्यंत गौरव और गर्व का विषय है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस सार्थक और जनहितकारी जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में हमारा बहुमूल्य सहयोग किया। प्रति वर्ष 7 नवंबर को यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर C.V. रमन की जयंती के रूप में मनाया जाता है और साथ ही हम यह स्मरण करते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैले। कैंसर एक ऐसी चुनौती है जो आयु, वर्ग या परिस्थिति का भेद नहीं करती। यह किसी को किसी भी समय हो सकती है, किंतु यदि हम समय पर जांच कराएं, जागरूक रहें और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं तो हम कैंसर से निजात पा सकते हैं। हमारा ट्रस्ट हेल्थव्यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शिक्षा, संस्कृति और जागरूकता से रिलेटेड सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहा है। हमारा विश्वास है कि एक जागरूक समाज ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। इसी सोच के साथ हम विभिन्न संस्थानों के साथ ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित सभी विशेषज्ञ वक्तागण इस दिशा में मार्गदर्शन देने वाले दीप दर्शक हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय प्रशासन, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के निदेशक और सभी सहयोगियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने आज कार्यक्रम के आयोजन में हमारा साथ दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप ही वह सीढ़ी हैं जो भविष्य की दिशा होगी। यदि आप जागरूक होंगे तो हमारा समाज जागरूक होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं सतर्क रहेंगे बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे और ये बताएंगे कि कैंसर का शीघ्र निदान ही सबसे बड़ी जीत है। अगर हम कैंसर के प्रति जागरूक होंगे, उसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे, तभी हम इसका निदान कर सकते हैं। आइए हम आशा, सहयोग और संवेदना की इस ज्योति को हर हृदय में प्रज्वलित करें, क्योंकि जब जागरूकता बढ़ती है तभी जीवन बढ़ता है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस जागरूक कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your warm words and for beautifully outlining the purpose of today's event. Help us take this opportunity to honor our esteemed guests who have graced the occasion with their presence. May I request Dr. Rupal Agarwal
to do the honors and felicitate our very own Honorable Vice Chancellor Madam, Professor Manubha Khanna Ma'am. Please join your hands together and the felicitation. Thank you, ma'am. May I now request Professor Pushpendra Kumar Tripathi, Director, Lucknow University Institute of Pharmaceutical Sciences, to felicitate the doctors present here. Dr. Shikhar Srivastava, ma'am, please accept the token of love and gratitude. I request sir to also felicitate Dr. Shelly Mahajan, ma'am. So please felicitate Dr. Hemant Agarwal, sir. And may I request sir lastly to felicitate Dr. Pooja Singh. May I now request Dr. Rupal ma'am again to felicitate Professor R.K. Singh, Director, 2nd Campus. So please accept it as a token of love and gratitude from the HU. Ma'am, please do the honors by felicitating Professor S.K. Singh, Sir, Dean, Faculty of Engineering and Technology. I request Rupal ma'am to kindly felicitate Professor Pushpendra Kumar Tripathi, sir, Director, Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Lucknow. Ma'am, I also request you to felicitate the organizing team of today's event. I request Dr. Soumya Singh ma'am to please come up the stage. I also request Ms. Kiran ma'am to please come up the stage. Head view felicitates Dr. Lubna Azmi ma'am. Ma'am, please come up the stage. Dr. Pranati Srivastava. It is now my honor to invite our Honorable Vice Chancellor Ma'am, Professor Manubha Khanna Ma'am, to deliver the Presidential Address. Very good afternoon to all our esteemed guests on the dais, the Director of Pharmacy, Professor Niket Tripathi ji. We have the Director of the new campus, who's our Law Faculty Dean also in the past term, Professor R.K. Singh ji. The Dean of Engineering and Technology, who's recently taken over, Professor Satyendra Singh ji. Rupa ji, who's helped us to organize the entire program, and our 4 distinguished doctors who are here to help our students as well as our faculty to gain some kind of awareness about the cancers. आज इस सीवी रमन जी की एनिवर्सरी के दिन को हम लोग याद करते हुए 7 नवंबर को एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग बीमारी के बारे में सीखें, पर्पस इस चीज़ का भी है कि किस प्रकार से एक साइंटिस्ट ने इस फील्ड में योगदान दिया, उसको रिमेंबर करते हुए, उसको याद करते हुए, सम्मान देते हुए उन्हें ये ध्यान करें कि आज के समय में भी आप लोग जो फार्मेसी पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़कर इस फील्ड में काम करना है। एक बीमारी के बारे में जागरूकता, अपने को उससे बचाने के लिए जागरूकता, साथ में ये भी ध्यान रखना कि हम लोग एज स्टूडेंट्स, चाहे हम फार्मेसी के हों या किसी और विषय के, उन्हें कोशिश करनी है कि समाज में आगे इस प्रकार की बीमारियां ना फैले, इसके लिए हमें काम करना है। अगर किसी की कोई गलत आदतें हैं तो उनको हम छुड़वा पाएँ जिससे कि बीमारी ना फैले, या एज फार्मासिस्ट आप लोग उस बीमारी की जड़ को भी समझें, उसके उपचार को भी समझें, ताकि आगे चलकर हो सकता है आप ही में से कोई सीवी रमन जैसा एक नया कुछ खोज कर सके, क्योंकि उस स्टेजर तक पहुंचने में कभी उन्होंने भी इसी तरह से पढ़ाई की होगी, शुरुआत की होगी।
इसलिए ये मानकर हम लोग एक आदर्श को सामने रखते हैं। ये आदर्श अगर बहुत ऊंचा होगा तो उस दिशा में बढ़ने के लिए आप ज़्यादा एफर्ट या कोशिश करेंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारा टारगेट बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा कर लेना है, तो दैट विल नॉट बी देयर पर्पस, क्योंकि इस समय टारगेट्स हमेशा हाई होनी चाहिए। आप अपने को सिर्फ ये ना सोचें कि आप एक डिग्री लेने आए हैं, बल्कि वो हर उस क्षेत्र से प्रेरणा लें। जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं उनसे प्रेरणा लें कि किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में आगे अच्छा से अच्छा कर सकते हैं और समाज को अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग डिग्रीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये डेफिनेट चीज़ है, लेकिन उस डिग्री को लेकर हम समाज को अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। आज इस विशेष अवसर पे हम लोग ने आज 2 चीज़ों को कोमेमोरेट कर दिया। एक सीवी रमन जी के योगदान को, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान है उसके लिए राज्य गीत जो है उसके 150वीं वर्षगांठ को भी कोमेमोरेट किया, और साथ में इस चीज़ को भी कोमेमोरेट किया कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं शायद अपने जॉब्स का टाइम निकाल कर हमारे पास आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको जागरूक कर सकें और इस चेन को आप आगे ले जाकर समाज के अन्य लोगों को जागरूक कर सकें कि कैंसर जैसी बीमारी को हम किस प्रकार से उसके रोकथाम कर सकते हैं, कम पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि उपचार हम भी जानते हैं कि कैंसर का ढूंढा जा रहा है, लेकिन उतना प्रभावी अभी भी नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। और बहुत बार ये देखा जाता है कि कैंसर के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं, कुछ दिन तक उस कैंसर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके रेपरकशंस कीमोथेरेपी के भी आ रहे हैं और उपचार के बाद कैंसर के रेपिटेशन के भी केसेस सामने आते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बीमारी आए ही नहीं, और इसीलिए आज हमारे डॉक्टर्स आपके विशेषज्ञ हैं, वो आपको उसके लिए कुछ बताएंगे। लेकिन आई कॉन्ग्रेचुलेट द इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एज वेल एज all our faculty members who have at least planned on this program। और रूपल जी को विशेष थैंक्स कि उन्होंने खुद प्रपोज किया ये कार्यक्रम और हम लोग के लिए सारे अरेंजमेंट्स करके लिए। सो बिग थैंक्स टू बोथ द इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी as well as the HPO organization for coming here to make this day possible। क्योंकि हम लोग अपने लेवल से उसको करते बढ़ we have been disassociated from KGMU जो कि एक समय हम लोग का पार्ट था, इसलिए अब हम लोग को बाहर से असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your inspiring words and constant motivation. May I also request Honorable Vice Chancellor ma'am and dignitaries on the dais to release the book Muskurati Parchaiyan written by Dr. Shailin Mahajan. Join your hands together as a book launching ceremony. Thank you, Didi, please. Thank you, ma'am. Now we have the pleasure of hearing from Dr. Hemant Kumar Agrawal, who will be delivering a keynote on respiratory cancers. Dr. Hemant Kumar Agrawal is a very renowned doctor with his MD in respiratory medicine. He has a special interest in sleep medicine and interventional pulmonology and is very renowned amongst his patients. He has a YouTube channel for public awareness and shall be talking about respiratory cancers and what we should be aware of. Sir, dice is all yours. Good afternoon. So, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार अग्रवाल, रेस्पिरेटरी फिजिशियन फ्रॉम रामलाल लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी को, बीसी मैडम को, डायरेक्टर साहब को, ऑनलाइन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह बढ़ रहा है। आप चैट जीपीटी में डालिए, लंग कैंसर पूरा खुल के आ जाएगा। बस मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करने आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 वे हो, कि मैं मान के चल रहा हूँ कि इस हॉल में 200 लोग होंगे करीब, हो सकता है 250 भी हों। तो आप मुझे प्रॉमिस करिए कि जो भी मैं आपको बोलूँगा आप आगे ट्रांसफ़र करिएगा,
मतलब जैसे मैं दूसरों को अवेयर कर रहा हूँ, आप में से हर एक बंदा आगे दूसरों को अवेयर करेगा, वो आगे दूसरों को अवेयर करेगा, इस तरह से पूरी सोसाइटी अवेयर हो जाएगी। आप लोग करेंगे, प्रॉमिस करते हैं? यस। तो पहले हम जानते हैं कैंसर होता क्या है। जैसे भी टीचर बताते थे, मैं वही वर्ड बता रहा हूँ, टीचर बोलते थे कि कैंसर एक तरह का एक गंदा बच्चा है, या बोलते हैं एक टेररिस्ट है जो कि एक सोसाइटी में आ गया है और वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है रैपिडली। ओके, जब उसकी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ेगी तो जो नॉर्मल इंसान होंगे उनको दिक्कत होगी। तो कैंसर बस एक यही चीज़ है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि नॉर्मल टिश्यू होता है। से फॉर एग्जांपल जैसे लंग्स को ले लें, लंग्स में टिश्यू होते हैं, अगर उनकी प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल हो जाए, जरूरत से ज़्यादा डिवाइड करने लगे, उसको बोलते हैं कैंसर। जब डिवाइड करेंगे जरूरत से ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, नॉर्मल टिश्यू कम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैंसर। अब हम बात करें कि लंग कैंसर ही क्यों, जो डिसाइड किया है डायरेक्टर साहब ने कि लंग कैंसर अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके कई सारे रीज़न है, ये ऐसे ही नहीं किया गया। इसके रीज़न क्या है? ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड, सेकेंड मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड। अगर हिंदुस्तान में बात करें तो मेल पॉपुलेशन में नंबर 1 है। ओवरऑल देखा जाए इंडिया में तो सेकेंड नंबर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर इसकी मृत्यु के बारे में बात करें, मोर्टेलिटी बात करें, मोस्ट कॉमन है। तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर डेथ होती है वो लंग कैंसर की वजह से होती है। बाद में बताऊंगा कि क्यों होती है। तो अभी के लिए ये याद रखिए कि एक सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर का इन ह्यूमन बॉडी और सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण है। अब इसकी ईटियोलॉजी क्या है, मतलब ये लंग कैंसर होता क्यों है? मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा, सबको पता है 80% लंग कैंसर होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। डू यू एग्री और नॉट? 80%। बाकी 20% कहाँ से आया? बाकी 20% कहाँ से आता है? पैसिव स्मोकिंग से, ओके, पॉल्यूशन से। फैक्ट्री वर्कर होते हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से। तो इन सब से जो आता है वो रेस्ट 20% होता है। और कुछ लोगों में हमें नहीं पता कि क्यों कैंसर होता है, इसको बोलते हैं इडियोपैथी। तो हमें मोटा मोटा देखा जाए तो 80% स्मोकिंग की वजह से होता है। अब स्मोकिंग वजह से क्यों होता है? क्योंकि स्मोकिंग में ढेर सारा हानिकारक मटेरियल होता है जो क्या करता है कि जो नॉर्मल सेल होती हैं लंग्स की, उसको वो बिगाड़ देता है। देखिए बच्चा बिगड़ जाता है, जैसे बिगाड़ देता है। जब बच्चा बिगड़ता है तो और लोगों को भी बिगाड़ देता है। इस तरह से कैंसर स्प्रेड करता है, इस तरह से कैंसर बढ़ता है, इस तरह से स्मोकिंग से कैंसर होता है। और क्या रीज़न है? स्पेशली फीमेल में बायोमास फ्यूल एक्सपोजर। आपने देखा होगा कि आप ही के घर में आपकी जो दादी होंगी, नानी होंगी, चूल्हे पे खाना बनाती होंगी ना। सब लोग इतने मॉडर्न तो नहीं हुए, दादी तो एटलीस्ट होंगी। उसका जो स्मोक निकलता था, जो धुआं निकलता था, वो सिगरेट स्मोकिंग की तरह ही काम करता था मोर और लेस। इसकी वजह से जो फीमेल में कैंसर हुआ इसकी वजह से हुआ। दूसरा कुछ फैक्ट्री वर्कर्स है जहाँ पे कि लेड फैक्ट्री है, जैसे कि बीजोथीलियोमा हुआ, लंग कैंसर हुआ। तो ये कुछ नॉन स्मोकिंग कॉज है जो लंग कैंसर कॉज करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि फीमेल तो सिगरेट नहीं पीती हैं ज़्यादा, उनमें क्यों होता है? तो एक तो मैं बता दिया बायोमास फ्यूल एक्सपोजर। लेकिन अब फीमेल में लंग कैंसर का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि स्मोकिंग बढ़ रही है। अब आप लोग नोटिस करते होंगे अपनी कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कि फीमेल भी स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी है। एग्री और नॉट? एग्री। थर्ड कॉज है पैसिव स्मोकिंग। मैं तो स्मोक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई स्मोक कर रहा है, मेरे हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं, फादर स्मोक कर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग। नंबर 4 और 5 इज कि अब पहले क्या थी कि महिला घर में रहती थी, अब वर्किंग महिला हो गई। तो उनका ऑक्यूपेशन जैसे बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कॉज करेगा, और जो अगर कोई काम कर रही है उसमें ऑक्यूपेशन में, तो वहाँ से भी एक्सपोजर होगा। इस वजह से फीमेल में ये बढ़ रहा है। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे लंग कैंसर आता है? सबसे जो खराब बात है, इसके कोई सिम्टम नहीं होते। मतलब 80% पेशेंट्स में सिम्टम्स आते ही नहीं हैं।
फिर हम कैसे पहचानेंगे, राइट? तो अगर किसी को ड्राई कफ है, सूखी खांसी आ रही है मोर देन 2 वीक्स, ओके, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है ना 2 वीक से ज़्यादा खांसी, तो क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। अगर टीबी पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है? लंग कैंसर हो सकता है। अगर किसी के स्पूटम में ब्लड आ रहा है, हीमोप्टिसिस को बोलते हैं, तो कफ हो गया, हीमोप्टिसिस हो गया। अगर बड़ा हो गया है तो दैट विल कॉज चेस्ट पेन। तो ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। फिर लेटर ऑन जब ग्रोथ बढ़ जाएगी, नॉर्मल टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगा, दैट विल कॉज डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, बाद में डिस्निया होने लगेगा। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। एक और कॉमन होता है जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि अगर किसी एल्डरली मेल, बूढ़े आदमी या मिडिल एज का अगर फ्रैक्चर होता है, जैसे कोई कहते नहीं कि मेरे फ्रैक्चर हो गया, जरा सा मैं बाथरूम में गिरा, फ्रैक्चर हो गया। अगर किसी को फ्रैक्चर हो रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि ट्रॉमा सीवियर नहीं है, देन यू हैव टू सस्पेक्ट कि कोई कैंसर होगा, क्योंकि बोन मेटास्टेसिस इज वन ऑफ मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के अपने सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन मेटास्टेसिस की वजह से बोन फ्रैक्चर एक कॉमन है। तो आपको लग रहा है कि ट्रॉमा सीवियर नहीं है लेकिन फ्रैक्चर हुआ है, देन यू हैव टू रूल आउट कैंसर। और लेकिन 80% में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे हिंदुस्तान में, इसके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और शायद यही कारण है कि सोसाइटी में इसको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी वजह से डिले डायग्नोसिस होता है। तो डिले डायग्नोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि टीबी की तरह आता है। अगर आप लोग इसका एक्सरे कराएंगे पेशेंट का, तो उसमें जो धब्बा दिखेगा, जो मास दिखेगा, वो टीबी में भी सेम होगा, लंग कैंसर में भी सेम होगा। तो इसलिए इसकी डिले डायग्नोसिस होती है। और आप जानते हैं कि कैंसर में जितना डिले डायग्नोसिस करेंगे उतनी ही मोर्टेलिटी बढ़ती चली जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं और टीबी नेगेटिव आ रहा है, तब हमें लंग कैंसर सोचना होगा। उस केस में क्या करना होगा? एक्सरे कराना होगा, सीटी स्कैन कराना होगा, और कंफर्म कैसे होगा? बायोप्सी, लंग बायोप्सी से इज अ कंफर्मेटिव। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट को बता सकता है? 80% पेशेंट आते हैं वो स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 में बता दूं, स्टेज 1, 2, 3, 4 इज द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि जब पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो 80% केसेस में ये लोग मेटास्टेसिस में आते हैं, जिसका कि कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो ट्रीटमेंट की बात करूँ, क्योंकि आप लोग फार्मेसी से हैं तो ट्रीटमेंट समझ पाएंगे। इसके 5 मेन टाइप ट्रीटमेंट होते हैं, 5 टाइप के ट्रीटमेंट। एक होता है सर्जरी। सर्जरी कब कर सकते हैं? जब छोटा सा ट्यूमर हो, एक लंग में छोटा ट्यूमर हो, उसको काट के निकाल दें, कहानी खत्म। ओके। दूसरा है रेडियोथेरेपी, तीसरा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? एक तरह का, जैसे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में बम गिराया, क्यों? कुछ टेररिस्ट को मारने के लिए, लेकिन उस टेररिस्ट के साथ में नॉर्मल लोग भी तो मरेंगे ना। तो दैट डज बाय कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या करता है? कैंसर सेल को तो मारता ही है, लेकिन साथ में नॉर्मल सेल्स को भी मारता है। तो ये इसका एक कहना चाहिए साइड इफेक्ट है। चौथा है एक टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी का मतलब ये होता है कि हम लोग पहचान लें कि ये बच्चा बिगड़ा क्यों। कोई तो बिगाड़ने वाला होगा, कोई मोहल्ले का, अड़ोसी पड़ोस कोई बिगाड़ने वाला होगा। अगर हम लोग उसको पकड़ लें, टारगेट को पकड़ लें, अगर टारगेट को पकड़ लें और उसका ट्रीटमेंट कर दें, तो बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं टारगेट थेरेपी। तो बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि लंग कैंसर में कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ जीन्स होती हैं। एक होती है जैसे EGFR, आल, रॉस। तो ये अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लें, उसको हम लोग डेफिनेट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पांचवा होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का मतलब हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लें कि कैंसर सेल को मार सके। तो ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब लास्ट स्टेज में कैंसर में आते हैं और कुछ ही लोगों में ये टारगेट्स पाए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, MD कर रहे थे, हम लोग पढ़ते थे, तो हम बताते थे कि लंग कैंसर हो गया, इसका मतलब एक डेथ सेंटेंस है।
वो पेशेंट नहीं बचेगा। डू यू एग्री और नॉट? पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट स्टेज 4 में नहीं गया है तब सर्वाइवल ठीक है, लेकिन अगर स्टेज 4 में चला गया है जो कि 80% लोगों में होता है, इसका मतलब सर्वाइवल कम हो जाएगा। तो अगर स्टेज 4 में चला गया है तो उसका सर्वाइवल कितना है? लगभग 6 से 8 महीना। लेकिन अगर हमने वो टारगेट पकड़ लिया कि बच्चा बिगाड़ा किसने है, अगर हमने वो ट्रीटमेंट दे दिया तो लाइफ जो प्रॉब्लम होती है 5 साल तक हो सकती है। और अगर हमने इम्यूनोथेरेपी दे दी तो और लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है। अब लंग कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है, हम लोग कुछ उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो आपको यही अवेयर करना है सोसाइटी में भी कि अगर आपको लंग कैंसर है तो आप इलाज कराइए, कुछ तो लाइफ बढ़ जाएगी आपकी। अब जैसे मैं बताया था कि डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है तो प्रिवेंशन का बड़ा रोल आता है। प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन क्या है? क्विट स्मोकिंग। तो आप लोगों में से कुछ लोग स्मोकिंग करते होंगे, तो आज से प्रॉमिस करिए कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आप करोड़पति हो सकते हैं, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे? चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं और मेरा भाई 2 भाई हैं हम लोग। जब मेरे बड़े भाई 20 साल के थे, उन्होंने स्मोकिंग की थी और मेरे पिताजी ने पकड़ लिया। अब पकड़ ले जाएंगे तो पता ही होगा क्या होता है, वो तो होगा। पिताजी ने समझाया कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो पैसे बचेंगे, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो ऑन एवरेज आप लोग पता होगा कि एक नॉर्मल इंसान लगभग 100 रुपये की सिगरेट रोज़ पी जाता है। 10 सिगरेट तो पिएगा ना रोज़। महीने कितना हो गया? 3000 रुपया। अगर 3000 रुपये आप SIP में लगाएंगे तो आप 40 साल में करोड़पति हो जाएंगे। तो मैंने कैलकुलेशन भी की थी। अगर 3000 रुपये आप SIP में लगाते हैं, जो कि आप कहाँ से आ रहा है पैसा 3000 रुपया? स्मोकिंग ना करने की वजह से, तो 60 साल की उम्र में आपके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपया होगा 60 साल की उम्र में। और 70 साल की उम्र में आपके पास होगा 3 करोड़ 56 लाख। और ये पैसा कहाँ से आया? आपने स्मोकिंग ना करने की जो प्रॉमिस किया था उसकी वजह से आया। तो आप लोग अब एग्री हैं कि स्मोकिंग छोड़ने से आप लोग करोड़पति हो सकते हैं? तो आप लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को छोड़ने से ही काम नहीं चलेगा, आपको सोसाइटी को अवेयरनेस करना है कि आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। दूसरा चीज़, पैसिव स्मोकिंग से भी ये लंग कैंसर होता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी जान बचानी है तो दूसरों को ही मना करना पड़ेगा। दूसरों को मना करेंगे, यस और नो? तीसरा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना मैक्सिमम हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे। और क्या है, एक इम्पोर्टेंट छूट गई, फास्ट फूड। जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, जो स्पेशली हम लोग जो यूनिवर्सिटी के बाहर जो खोमचा है उसमें खाते हैं, अगर कोई चीज़ रिपीटेडली तले जाए, समोसे तलते हैं, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। अगर वो कार्सिनोजेंस अगर प्रिवेंट नहीं किए तो लेटर लाइफ में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग आज से प्रॉमिस करेंगे कि हम लोग फास्ट फूड में भी कमी लेके आएंगे। तो 4 प्रिवेंशन हो गए। स्मोकिंग छोड़ना है, पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करना है, पॉल्यूशन, फास्ट फूड। तो सब लोग करेंगे, आगे अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात शेयर करने का। और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों के मन में कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लें। धन्यवाद आप सभी लोगों को। Thank you so much, sir, for your incredible and enlightening talk, and on a critical topic, obviously. Next, we welcome Dr. Shikhar Srivastava, who is an obstetrician and gynecologist and a public health specialist with over 3 decades of experience of working and leading national and international organizations. She has touched upon almost all health areas, including family planning, maternal and child health. That is already amongst us. Ma'am, that is all yours. Thank you, madam. First of all, I would like to thank HelpU Educational Trust, Dr. Rupal Agrawal, Madam Khanna, for inviting me to share some of my
views on this auspicious day. जैसा आप लोग भी जानते हैं कि आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। अवेयरनेस से मतलब समझते हैं सब लोग, है ना, जानकारी। तो कुछ लोगों को ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड में जानकारी होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज भी है, जेंट्स भी है। अवेयरनेस लेकिन सबको होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसके लिए। तो मैं एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप लोगों को मालूम है सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में कौन सा है? हाँ, एक जना बोलिए तो सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। और उसके अलावा दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। तो ये बेसिक आप लोगों को ये पता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर वुमेन में कौन कौन से होते हैं, है ना। इसी तरीके से पुरुषों में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? डॉक्टर अग्रवाल ऑलरेडी बता के गए हैं, जस्ट ए रिवीजन। लंग कैंसर और शायद मैडम इसके बाद बताएंगी ओरल कैंसर भी बहुत कॉमन है टोबैको यूज से, है ना। आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज अभी मैडम विल टॉक ऑन दैट। हम लोग बात करेंगे थोड़ा विस्तार से जो महिलाओं में होने वाले कैंसर हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या, उनसे कैसे बचा जा सकता है या कैसे उनका अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है और क्या मुख्य चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट में काम आती है। तो सर्वाइकल कैंसर का आपने नाम सुना होगा। पहले हम लोग जब बात करते थे आज से 10 साल पहले, तो अक्सर क्या होता था, अगर सर्वाइकल बोल रहे हैं तो हम लोग अपने इस एरिया को भी सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, जो यहाँ का स्पाइन है उसमें सर्वाइकल। तो अक्सर ये होता था कि लोगों को, ऑडियंस को कंफ्यूजन होता था कि सर्वाइकल का मतलब क्या है। तो सर्विक्स क्या होती है ये पता है आप लोगों को? जो सभी लोग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा मेडिकल आपको आइडिया होगा। जो बच्चेदानी का मुंह वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। बहुत ही छोटा एरिया है लेकिन इसका जो कैंसर है ये महिलाओं के लिए बहुत घातक होता है। और इसकी मुख्य बात पता है क्या है? मुख्य बात ये है लेट डायग्नोसिस। बहुत ही लेट डायग्नोसिस होती है, खास तौर से रूरल एरिया की महिलाओं में अस्पताल आने में बहुत देर होती है। ये होता कैसे? सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, कुछ आइडिया आप लोग को? HPV इन्फेक्शन का मुख्य कारण है। HPV एक तरीके का वायरस होता है, साधारण सिंपल जैसे और वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसी तरीके से होता है, लेकिन इनमें अगर रिपीटेड होता रहे, किसी उसमें कुछ स्ट्रेन्स वायरस के ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये आगे चल के कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते, पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वॉर्ड्स होते हैं, मतलब वॉर्ड्स का मतलब ये होता है छोटे छोटे मस्से टाइप निकल आए हाथों में, पैरों में या आपके जेनाइटल एरिया में वॉर्ड्स हो सकते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि और एडवांस स्टेज हो जाती है तो डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और प्लस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्पॉटिंग की कंप्लेंट करते हैं लोग। स्पॉटिंग का मतलब जरा सी सिंपल जरा सी ब्लीडिंग होती है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम फॉर द डायग्नोसिस। अच्छा, हम डायग्नोसिस पे यहाँ पे इतना विस्तार करने के बजाय थोड़ा प्रिवेंशन की भी हम बात करना चाहते हैं। प्रिवेंशन हम कैसे कैसे करते हैं? अभी डॉक्टर साहब ने लंग कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें बताई। प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? फिर आपको बताया वायरल इन्फेक्शन से होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, HPV वायरस से होता है। कुछ आइडिया है किसी को? एनीबॉडी? आप देखिए सब लोग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों को मेडिसिन का भी थोड़ा आइडिया है और भी कुछ आइडिया है। बहुत इंपॉर्टेंट आजकल सुन रहे होंगे आप लोग HPV वैक्सीन का नाम सुना है ना, कि वैक्सीन अगर लग जाती है तो बीमारियों से बचने के लिए तो लगती है कि नहीं? तो सर्वाइकल कैंसर से जो HPV इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए HPV वैक्सीन आ गई, और ये अभी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है, बट अभी आप ले करके लगा सकते हैं। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कोलैबोरेशन से जगह जगह पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कहीं पे स्कूल हेल्थ में, पंजाब में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्होंने स्कूल हेल्थ में इनकॉर्पोरेट किया था, क्योंकि इसकी जो ऑप्टिमम एज है वो 9 साल से लेकर 14 साल की बच्ची को अगर लगा दिया जाता है तो कैंसर से बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
जो WHO का सपना है कि कैंसर मुक्त भारत हम करेंगे, उसमें यही है कि करीब करीब 90% लड़कियां हमारी वैक्सीनेटेड हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग खुद बताइए क्या। हाँ वेरी गुड, मैं अभी पूछने ही वाली थी ये क्वेश्चन आप लोगों में से। तो आप लोग को तो बोलना चाहिए था ना, जब लगवा रखा है तो मैं पूछ रही थी क्या है बचाव के तरीके। तो लेकिन अभी आप देखिए इतने बड़े हॉल में बहुत कम लगी है, बहुत कम लगी है। इसको आपने लगवाई है, लेकिन इसको आपको और प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगवा सकें। बहुत महंगी भी नहीं होती है कि आप इतना जो है नहीं लगवा सकते। जो लोग लगवा सकते हैं वो ज़रूर लगवाएं। और 9 से 14 साल की उम्र जो है ऑप्टिमल एज होती है कि इमीडिएटली आप लगाने के बाद उसको कैंसर से बचत हो सकती है। दूसरा और क्या रहा है, अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि HPV इन्फेक्शन और कैंसर सर्विक्स दोनों में डेवलप होने में बहुत साल लगते हैं, मतलब 8, 10 साल, 11 साल कुछ भी लग सकते हैं, अच्छा खासा समय होता है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो फिर आप उसको पूरी तरीके से कैंसर फ्री कर सकते हैं उस महिला को। और अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब क्या है, स्क्रीनिंग किसको कहते हैं, बताइए बताइए। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है, बताइए। एक शुरुआती जांच ऐसी जिसको आप ज़्यादा लोगों के लिए मास के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं उस पर पता लग जाती है ना। जैसे आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तब भी आपका एक्सरे होता है, तो क्यों होता है, ये थोड़ी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। इसी तरीके से जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसकी भी अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग एडवाइस है अगर वुमेन की एज 30 इयर्स एंड अबव। ठीक है, तो वैक्सीनेशन आप लड़कियों से शुरू कर दीजिए और जिन महिलाओं की उम्र 30 से ऊपर है, 30 से 60 साल के बीच की है, उनको आप स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर भेजें। और स्क्रीनिंग जो है हमारे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में अब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, ये जो एक तरीके से अर्बन हेल्थ सेंटर्स है, उनमें भी उपलब्ध है। प्राइवेट सेंटर्स में तो सब जगह उपलब्ध है और हायर सेंटर्स में भी सब जगह उपलब्ध है। कोशिश की जा रही है कि इट शुड बी ए पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ महिला को जो है स्क्रीनिंग जरूर की जाए। स्क्रीनिंग के भी बहुत से तरीके हैं जो बहुत सिंपल भी हैं कुछ और कुछ में थोड़ा सा लैब वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक हम लोग तरीका नया बताते हैं, नया तो नहीं है लेकिन उतना पॉपुलर नहीं था, VIA हम लोग कहते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। VIA विजुअल इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देखना। ठीक है, तो वो आंखों से ही देख करके एसिटिक एसिड का क्या इफेक्ट हो रहा है, 5% एसिटिक एसिड यूज करते हैं तो पता लग जाता है उसमें क्या चेंजेस है। अगर जरा सा भी डाउट होता है तो उसको देन एंड देयर ट्रीट किया जा सकता है। स्क्रीन एंड ट्रीट अप्रोच आप देखिए, अगर जरा सा भी डाउट लगता है उसी समय आप क्रायोथेरेपी एक बहुत सिंपल तरीका है, उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कोल्ड कोएगुलेशन एक तरीका है जिसमें इन जानकारी पे आपको विस्तार से नहीं बताना चाहती हूँ मैं, बस ये बताना चाह रही हूँ अर्ली डिटेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसका टोटल क्योर उपलब्ध है। ठीक है, और उसके बाद एडवांस स्टेज जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किस स्टेज पे है ये डिपेंड करता है। उसमें रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, टारगेटेड थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है, ये सारी चीज़ें केस पर केस डिपेंड करती हैं और उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की एक मेन चीज़ ये भी है कि आप जो है इसमें क्योंकि महिलाओं को बहुत तकलीफ बहुत दिनों तक नहीं होती है, इसलिए नेगलेक्ट होने के तो बहुत चांसेस हैं। इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब कि अगर आप एक हेल्दी वुमेन को कहें कि जाके तुम अपनी जांच करा लो, तो एक स्टिग्मा है लोगों में कि हम अंदरूनी जांच बिना किसी तकलीफ के क्यों कराएं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा कम्युनिटी रेडीनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस करने की ज़रूरत होती है, ताकि उनको पता चले कि एक हेल्दी महिला में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको देखने के लिए जांच की जा रही है, उनके अंदरूनी ऑर्गन्स में कोई जांच उनके लिए बहुत गलत नहीं है। तो इसलिए जांच कराने को है वो ज़रूर प्रमोट करना है, और बिना कम्युनिटी लीडर्स के या आप लोग जैसे लोग जो आज नेशनल हेल्थ अवेयरनेस डे पे ये जानकारी ले रहे हैं, तो वो अपने घरों में, अपने जहाँ भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें आप देखें
जो भी महिलाएं हैं 30 साल के 40 साल के, आपके घर में आपकी मदर्स होंगी या भाभियाँ होंगी, बहनें होंगी, आप सबको प्रमोट करें कि कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये स्क्रीनिंग किसी ऐसी महिला की जरूरी नहीं है जिसको कोई परेशानी हो, एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी वुमन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रूरल एरिया में अवेयरनेस कम है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेयरनेस ज़्यादा है। तो ऐसा भी देखा गया है जो कैंसर की डेथ रेट है वो रूरल वुमन में ज़्यादा है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कम है और कम होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। जहाँ पे जितनी अवेयरनेस है, जहाँ जो लोग सुविधाओं को पहले ले रहे हैं, उनको पहले पता चल जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो जा रहा है, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शॉर्ट में बात करना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो उसके रीज़न क्या हो सकता है, क्यों बढ़ रहा है, कुछ आइडिया है? मोस्ट कॉमन रीज़न है लाइफस्टाइल चेंजेस, ओबेसिटी। देखिए, आप देखिए ओवरऑल देखते हैं तो लोगों का वेट बढ़ रहा है, मतलब एक एवरेज उसमें थोड़ा बढ़ रहा है, खास तौर से ये अर्बन एरिया में ज़्यादा कॉमन है। और इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब ये वही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डाइटरी हैबिट्स बहुत ही पुअर हैं, सिटिंग हैबिट्स बहुत प्रोलॉन्ग हैं, शादियाँ देर से हो रही हैं, शादियाँ अगर हो भी गई तो बच्चे नहीं हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह जो होती है दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स बहुत सारी चीज़ों को। तो ये कुदरती चीज़ों में डिले और या ना होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम पैदा करती है। ब्रेस्ट कैंसर का एक चीज़ क्या है कि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो महिलाएं जो है वो एक छोटा नोड्यूल या थोड़ा बड़ा नोड्यूल ये कुछ महसूस करती है, लेकिन उसके प्रिवेंशन में हम लोग बताते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसा कि वर्ड से आपको लगता है कि अपने आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करिए, और वो एग्जामिनेशन सिर्फ आंखों से देख के नहीं करना है, वो आपको अपने फ्लैट ऑफ द हैंड से पैल्पेट करके करना है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना चाहिए। छोटा नोड्यूल है, कोई स्किन डिस्कलरेशन है, या कोई निप्पल से डिस्चार्ज है, या निप्पल का अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ी है, साइज में कोई फर्क है, पहले से अब नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ, इन सिम्टम्स का के लिए बहुत अवेयर रहें, और जैसे भी आपको ज़रा सा भी डाउट लगता है तो तुरंत जाके दिखाएं। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे चीज़ करी जा सकती है। उसके अलावा बहुत से तरीके हैं। मेमोग्राफी आप लोगों ने सुना होगा, तो मेमोग्राफी करते हैं, वो भी एक तरीके का अल्ट्रासाउंड से थोड़ा एडवांस वो चीज़ आती है, वो आप एडवाइस करते हैं 40 साल की एज के बाद में। और कुछ भी हो तो उसका ट्रीटमेंट के लिए तुरंत आप डॉक्टर के पास उनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी, ये प्रोग्राम भी है, तो चैलेंजेस भी कुछ हैं इसके। क्या चैलेंजेस आते हैं कि नंबर 1 ये सोशल स्टिग्मा। अभी भी कैंसर को लेके एक सोशल स्टिग्मा है। लोग जिनको हुआ है कुछ वो बताना नहीं चाहते हैं, या ऐसा लगता है कि अरे ये बातें करने वाली नहीं है। ये अक्सर सुनने को मिलता है और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी सुनने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत तरीके से सक्सेस स्टोरीज ट्रीटमेंट की बता रही हैं। जो सर्वाइवर्स हैं उनसे मीटिंग करा रहे। सर्वाइवर्स मतलब आप लोग समझते हैं जिनको कैंसर हुआ और वो ठीक हो गए, तो सर्वाइवर्स से सक्सेसफुल की हिस्ट्री बता रही है, कैसे उनको पता चला, कैसे उनकी जर्नी थी पूरी कैंसर को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के या ट्रीटमेंट को लेकर के। तो ये स्टोरी सुनने से भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो ये इतना सब प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम सारा कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा है जिसको हमको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई स्टिग्मा नहीं है। जैसे और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये भी एक वही बीमारी है। जो एक तो आपने सीवी रमन जी का बताया, ये एक मैरी क्यूरी करके एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियोथेरेपी का आविष्कार किया था। रिसर्च के बाद रेडियोथेरेपी का आविष्कार उन्होंने किया था, रेडियो चीज़ों को देखा, उसके बाद उसे ट्रीटमेंट दी। तो उनका ये कहना था कि आप चीज़ों से डरे नहीं, उनके बारे में जानकारी लें। उनके बारे में जब आप जानकारी लेंगे तब आप उससे जीत सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फेयर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। जब आप चीज़ों को समझेंगे ठीक से तब डेफिनेटली आप उससे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और ये समय है,
जिसमें हमको प्रिवेंट करना है, हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करना है, चाहे वो डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ कैंसर, चाहे भी कोई सा भी कैंसर हो। कहा यह जाता है मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज एक जीवन शैली का पार्ट होना चाहिए। 150 घंटे प्रति हफ्ता रिकमेंडेड है कि आप जरूर करें टू प्रिवेंट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। डाइट के लिए डॉक्टर साहब ने बताया सारा फास्ट फूड ये सब छोड़ करके आप लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनका उपयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये कार्सिनोजेंस जो होते हैं ये नहीं होते, उनमें हेल्दी बिहेवियर है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग अब ये आज ये प्लेज लें कि हम लोग कम से कम यहाँ से जाके 5 छोटी लड़कियों के पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे और कम से कम 10-30 साल से ऊपर की महिलाओं को एनकरेज करेंगे कि वो अपनी जांच कराएं। करेंगे कुछ लोग? बताइए। ये बहुत छोटा काम है, आप लोग जैसे इतने पढ़े लिखने के बाद कर सकते हैं आसानी से। जो लोग आपके यहाँ आराम से देखिए वो क्या जो वैक्सीन है 9 to 14 ईयर्स में बोली जाती है सिर्फ 1 डोज भी लगा लीजिए तो उसका भी इफेक्टिवनेस अच्छा है, और 1 डोज का कॉस्ट अभी 1800 या 2000 के अंदर आ रहा है, जो कि जैसा आपने बताया था कि स्मोकिंग रोकने से कितना पैसा आपने बचाया, उस दृष्टिकोण से आप देखें तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इन्वेस्ट इन योर फैमिलीज हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है। आप जांच के लिए 500 रुपए की जांच के लिए दुनिया भर की जगह जाके और कम कराने की सोचेंगे, फिर बाद में ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत करना पड़ेगा। ऐसा देखा गया कि भारतवर्ष में अगर कैंसर हो जाता है तो प्रत्येक कैंसर के व्यक्ति को 1 से 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट मतलब उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचिए कि वैक्सीन अभी हमें फ्री नहीं मिल रही है। एवरीथिंग फ्री इज नॉट ऑलवेज गुड। तो थोड़ा इन्वेस्ट करिए, कैंसर का टीका लगवाइए 5 लड़कियों को प्रति लोग और जांच कराइए, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और कोई भी प्रश्न किसी से पूछना हो तो वो उनसे पूछें। Thank you, ma'am, for your informative and thought-provoking address. Our next speaker is Dr. Shaili Mahajan, who is an orthodontist and laser specialist and deals in minimum invasive and aesthetic dentistry. She's a certified clear aligner provider and tobacco cessation specialist. Ma'am, we are honored to have you here. Thank you so much. At the outset, I would like to thank our VC ma'am, director sir, dean sir, and my health, which is always prevalent in spreading awareness, and all you wonderful audience. ये last lecture है and I know most of you would be feeling hungry और easy नहीं होता है ऐसे बैठे रहना, but I would like you to spare some few minutes because ये जो awareness का topic है ये ऐसे ही नहीं create किया गया है। This is like wholesome, आपको बताया जाए कि what is in your hand। कहते हैं कि गाने है ना जैसे वो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो मैं उसी डिपार्टमेंट से आती हूँ जिसका नाम है दंत चिकित्सा। एंड टुडे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ओरल कैंसर। एज डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज हैव स्पोकन अबाउट वेरियस कैंसर्स। कैंसर एक ही है पर अलग अलग जगह पे है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो हेरिडिटरी होगा, आपको जन्मजात मिला है, पेरेंट्स की तरफ से मिला है, वो एक और कारण हो सकता है, या कुछ कारण ऐसे हैं जो आपने अपने आप अपनाए हों। ये वायरल डिजीजेज होते हैं जिसमें HPV वैक्सीन के बारे में मैम ने बोला था, वो वायरसेस होती है, ह्यूमन पैपिलोमा। जो मुख्य कारण जो ओरल कैंसर्स का कई बार देखा गया है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इज माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप खान पान अच्छा नहीं करते हैं, हेमंत सर ने ऑलरेडी बताया है। नेक्स्ट इज आपका खाई के पान बना, रसवाला, या फिर किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार। और कौन कौन से गाने हैं, अगर कोई शादी होगी तो क्या होगा, क्या चाहिए, रजनीगंधा, है ना, बारातियों का स्वागत उससे नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आती थी एड्स ना। और बाकी कई और ऐसे बीड़ी जलाई जिगर से पिया, यही ऐसे गाने हैं। तो पता है टबैको एंड अल्कोहल ये सोने पे सुहागा करते हैं। एंड इनका कारण क्या होता है कि अंदर की जो भी चीज़ें हैं, एक तो स्वाद किसी को नहीं लगता। अगर किसी ने शराब पहली बार पी हो या गुटखा पहली बार खाया हो तो आप बताइए, या सिगरेट पहली बार पी हो तो किसी को मज़ा आता है? कभी किसी को मज़ा आता है, बहुत कड़वा लगता है, खांसी आती है, बट देन इट बिकम्स एन एडिक्शन बिकॉज उसका एक साइकिल है।
आपको जो हार्मोन है उसी के साथ में प्ले करता है। एक तो अलर्ट करता है आपको और एक डोपामिन रिलीज करता है जिसमें एक फील गुड फैक्टर होता है, आपको यूफोरिक आ जाता है। एंड जैसा सर ने बताया, अब लड़कियां भी पहले स्मोक करते थे तो अंदर करते थे, अब जेंडर इक्वालिटी के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा ऐसे करके करेंगे ताकि दिखे कि हम लोग कितने बड़े हैं, है ना। पर इससे हम बड़े नहीं होंगे। हमारी क्वालिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेरेब्रल लेवल, हमारे दिमाग के हिसाब से वो लेवल होना चाहिए। तो दीज वर द कॉजेज, बहुत सारे बोले गए हैं। नेक्स्ट कम्स कि इनको दिखता कैसे है। सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में बोला गया कि वो जाके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी कैंसर्स के लिए भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी कि खांसी जुकाम कुछ भी ऐसा हो रहा है या कोई ऐसा खून निकल रहा है, तो वो सब चीज़ें। स्किन कैंसर्स एंड ओरल कैंसर्स, ये आप देख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इजीली विजिबल इन योर माउथ। तो आपने क्या क्या ध्यान रखना है कमिंग टू दैट। अगर कोई छाला वगैरह मुंह में हो रहा है, ठीक है, कोई घाव है जो 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद भी वो रिस रहा है, दर्द कर रहा है, कोई लाल चकत्ते पड़ गए हैं मुंह के अंदर विदाउट एनी रीजन बट विद हिस्ट्री ऑफ टबैको एंड अल्कोहल, कोई मुंह में वाइट पैचेस आ गए हैं और एक टाइम के बाद मुंह खुल नहीं पा रहा है। ऐसे नॉर्मली हमारे मुंह में कितनी उंगली जाती है, सब अपने मुंह में उंगलियां डालिए, 3 तक जाती, 4 भी जाती हैं, बहुत बढ़िया, 3 तो मिनिमम जानी चाहिए। पर अगर वो धीरे धीरे कम हो रही है तो उस कंडीशन को हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। सो दे आर प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। उसके बाद अगर कोई आपका दांत है, नुकीला है, बार बार जीभ को टच कर रहा है और वो घाव होता जा रहा है, या आपके गाल की तरफ वो टच कर रहा है और वो रिस रहा है, कहीं सुन्नपन आ रहा है, आपके कान में सुन्नपन आ रहा है, where the numbness is there, where you can feel that okay something is problematic, कहीं पे फीलिंग नहीं हो रहा है, आवाज़ का चेंज होना, ठीक है, hoarseness of the voice. So these are the clinical symptoms which you can think of कि you can get. And इसके बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं। कैसे हैं? सबने बोला प्रिवेंशन। I would not go into more of it because I know it is a very sleepy topic. But then अभी ये वाला पार्ट जो आ रहा है वो है जैसे कि मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करनी है? सबने बोला कि कैसे प्रिवेंट करना है, मना कर देना है ये सब चीज़ों को। हम लोग क्या करते हैं, सरकार ने क्या किया, सरकार को ये करना चाहिए। अवेयरनेस का क्यों वो हो रहा है? क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है कि क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले इज टेक योर ऑटोनॉमी। फर्स्ट मेरा एक नारा है, अगर आप मानोगे तो प्लीज मेरे साथ बोलना है। फर्स्ट इज रुको रोको टोको। क्या? रुको रोको टोको। तो रुकने का काम किसका है? वेरी नाइस, आई कैन सी पीपल आर अवेक, तो इट इज गुड। रुकना है हमें, ठीक है। जब भी कोई आपको ऑफर करता है कोई भी चीज़ के लिए तो फर्स्ट थिंक ऑफ दैट, क्योंकि एज डॉक्टर हेमंत सर हैड ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट कि अगर आप स्मोक कर रहे हो तो ये आपको क्षति ही नहीं कर रहा है, आपके परिवार को या जो भी आपके आसपास है, आपके फ्रेंड्स को, उन सबको कर रहा है। एंड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ दैट। देन कम्स रोकना। फर्स्ट यू हैव पुट, अपने ऊपर संयम जब डाला है उसके बाद आप डालिए कि आप लोगों को रोकिए जो आसपास हैं आपके, यू नो, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका फ्रेंड हो गया जिसकी आप बात बहुत, मतलब जो आपकी बात बहुत मानते हैं। लड़कियां हैं अपने फादर को बोल सकती हैं, बीवियों की बात कम लोग सुनते हैं बट बच्चियों की बात या मदर्स की बात बहुत सुन सकेंगे। तो यू हैव टू टेल देम टू स्टॉप। देन कम्स द पार्ट ऑफ टोको। तो टोकना किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। गवर्नमेंट ने कैसे चीज़ें करी हैं? बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए। नेशनल हेल्थ सर्वेज में ये जो है वो NCD में आता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आता है। बहुत सारे NRTs हैं, जैसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं, वो बताई गई हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप कैलकुलेट करते हो कई चीज़ें, अब कोई चाहता है कि मैं ये छोड़ूं, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास आते हैं, तो वी गिव देम द प्लान्स दैट हाउ यू कैन क्विट देम। एंड ऑल्सो जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स पहले होती थी, पहले वर्ल्ड कप जितने भी होते थे, सब लोगों को वो स्पॉन्सर करते थे, वो स्पॉन्सरशिप्स हटाई। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने पानी भी ऐसे करके पीना शुरू कर दिया जिसमें लगे कि वो पानी ऐसे कौन पीता है? पानी ऐसे तो पीता है, ऐसे करके तो कोई और ही कुछ खाते हैं ना। तो दे आर सेरोगेट, यू नो। पानी के लिए इतना प्रमोशन थोड़ी ना करेंगे, या सिग्नेचर पेन के लिए थोड़ी ना इतना प्रमोशन करेंगे। सो दीज आर सेरोगेट, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। बट देन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इट्स बेस्ट। गैट्स है, ग्लोबल अडल्ट हेल्थ सर्विस, उसमें ये बताया गया कि स्मोकिंग शुड बी बैन। तो उन्होंने अपने उसमें किया तो कम आ गए,
उसमें क्या हुआ, आंकड़े कम आए, क्या स्मोक वाला बंद हो गया, स्मोकलेस वाला शुरू हो गया। स्मोकलेस में ऐसे ऐसे करके सीधा मुंह के अंदर डाले और वो चलते थे। और थूक वगैरह का वो सब तो गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स ले रही है। तो पार्लियामेंट में किसी ने थूका तो उनके ऊपर एक वीडियो बना लिया। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर, बट फर्स्ट इज दैट वेदर इट इज गुड फॉर अस और नॉट। एंड प्रिवेंशन कैसे है मुंह के अंदर, देयर आर 8 स्टेप्स, देयर आर 8 स्टेप्स विच यू कैन सी मॉर्निंग में और अपने आसपास भी। कैसे, आपके होंठ को आप नीचे देखिए, उंगली लगाइए उसके ऊपर, गाल की तरफ देखिए कि वो लचीलापन है कि नहीं अंदर की तरफ, ऊपर के होंठ की तरफ देखिए कि कोई ऐसी कोई मस्सा, कोई गिल्टी तो नहीं है जो पहले नहीं थी। यू नो दीज आर द बेसिक थिंग्स, क्योंकि आप अपने चेहरे को तो हमेशा देखते ही रहते हो। कोई भी आप जीभ है आपकी, वही आपको हेल्प करती रहती है। सौंफ का दाना भी फंस जाता है दांतों के अंदर तो जीभ बार बार इरिटेट करती रहेगी। कोई भी चीज़, अगर कोई मतलब चिकन वगैरह वो सब खाते हैं तो भी व्हेन इट इज देयर इन योर माउथ इट कीप्स ऑन इरिटेटिंग यू कि कुछ है। तो नेचर खुद ही अलाउ नहीं कर रही है फॉरेन बॉडी को। तो अगर कोई भी चीज़ है अगर उसमें आ रही है तो यू कैन ईजिली सी। जीभ के पास देखिए अगर एक छाला है, एंड हर छाला कैंसर नहीं होता है, बिकॉज अगर इटियोलॉजी अगर रिमूव कर दी जाए तो वो ठीक भी हो जाता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि दांत जो है वो हिल रहा है, तो हमने निकलवा दिया और उसके बाद ही कैंसर डेवलप हो गया। होता है क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता, दांत हिल रहा होता, किसी के पास भी चले गए, उन्होंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब तक आप देखते नहीं हैं, जब तक आप उस फील्ड में नहीं होते हैं, तो समटाइम्स इट मिमिक्स कि दांत जो है वो हिल रहा है बिकॉज ऑफ एनी अदर, मसूड़े की दिक्कत भी हो सकती है, बोन की दिक्कत भी, हड्डी की दिक्कत भी हो सकती है, उसके कारण भी दांत हिलते हैं, पर बाद में वो प्रॉब्लम आ जाती है। कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट, वी हैव सर्जरी, रेडिएशन एंड अदर 1 2 3 4 स्टेप्स होते हैं, हमने बोला एंड आई एम स्टिल रिपीटिंग। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में इट इज क्योरेबल, हम काट देते हैं उस एरिया को और आपको रिहैबिलिटेशन के लिए चला देते हैं, आपको कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन सब होती है। पर आपने कभी देखा है कि उसके बाद का क्या मैनेजमेंट होता है? देन कम्स रिहैबिलिटेशन। अगर आपके यहाँ सिकाई होती है, मेरे पास अभी भी फोटोग्राफ्स हैं, मुंह के अंदर आपका आधा जबड़ा काट दिया जाए, आपके पैर में दर्द होती है, आपके शरीर में दर्द होती है, कोई भी ऐसा चीज़ आप मास्क कर सकते हो, तो आप चेहरे को ढक सकते हो। हैव यू सीन सर्वाइवर्स? हम लोग उनको एज यू नो मतलब हीरो बना देते हैं, आप सर्वाइवर हो, आप देखिए बताइए कि क्या हुआ आपके साथ में और हमने कितना अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया। पर वो चीज़ वैसी नहीं रहती है। आर्थिक, मानसिक सब तरह से लोगों के बच्चों के स्कूल्स छूट जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब लेके आना पड़ता है थेरेपी सेशंस के लिए, देयर आर 5 सेशंस इन अ वीक, हर दिन, और 2-2 3-3 घंटे का वो रहता है, मतलब जिसमें 10 मिनट का ही रेडियोथेरेपी सेशन पर आना जाना। और कई ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग की स्टेट में हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, दीज आर लाइव एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग यू, लाइव पीपल हू कम, एंड उसमें दोनों पेरेंट्स के बच्चे बाहर हैं और वो खुद आके लेके आ रहे हैं, जबकि उनको बच्चों की हेल्प की ज़रूरत है, तो खुद ही एक दूसरे के लिए बच्चा और स्पाउस बनेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच वी सी। एक अगर जहाँ पे सिकाई होती है वो एरिया सिकुड़ जाता है, उनके मुंह में लार नहीं बनती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और वो पेशेंट तो झेल ही रहा है क्योंकि उसने ये सब किया है। इमेजिन उसका स्पाउस या कोई भी बच्चा अगर कोई है जो अपने पेरेंट को लेके आ रहा है, तो उनका जॉब कर पाओगे आप? अभी कोई भगवान ना करे किसी के घर में ये चीज़ हो जाए, तो क्या आपको यूनिवर्सिटी इस चीज़ का लीवर देगी कि बेटा आपके घर में ये प्रॉब्लम है, इट्स ओके, वी आर यू नो देयर विद यू, आप केयर लीजिए, आप ज़रूर RML में लेके जाइए, आप कैंसर इंस्टीट्यूट्स में लेके जाइए, बिकॉज दिस इज ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। Would they allow you to take exam? Would they? And something which is so preventable, why aren't we talking about it? जो चीज़ अभी बंद हो सकती है उसको क्यों नहीं, क्यों उस टाइम तक आना, क्यों ये सोचना कि अरे हमारे बुजुर्ग भी खाते थे कभी किसी को हुआ नहीं। अगर आंकड़े देखे जाए तो एवरी डेथ इज हैपनिंग इन एवरी 4 to 5 मिनट्स इन इंडिया, और ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड है। हमारे कई जो मतलब लोग हैं वो गांव में रहते हैं, तो गांव में क्या होता है, डायन खा गई, कुछ भी हो गया पता ही नहीं चला, एकदम से अभी कैंसर के जितने भी सर्वाइवर्स वगैरह आते हैं वो सब की हम लोग कर रहे हैं। हम हर जगह पे जा रहे हैं, PHC सेंटर्स, मतलब यूनिवर्सिटीज़, हर जगह जा रहे हैं, बट इट इज़ ओनली मेकिंग सेंस इफ यू पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड से दैट ओके दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ना सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करे, ना उसका कोई स्वाद है, तो क्यों अपनाना उस चीज़ को, मुझे ये समझ में नहीं आता। और होता कैसे है, एक दूसरे को देखा देखी, आपने फादर को देखा, हमारे पास अभी आज ही एक 10 साल की बच्ची आई है जिसका मुंह कम खुल रहा था, छुपा छुपा के वो खाती है,
एंड पेरेंट्स में से कोई नहीं खाता है. So these are the things which you need to take care, and you are the youth, you are the backbone of India. अगर आप लोग ही सजग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो I think we have nothing to lose. You know, we will be the biggest power. अगर वर्ल्ड कप में फीमेल्स हैं तो हर जगह पे होंगे. इंडिया इज गोइंग टू ब्लॉसम लाइक एनीथिंग. बाकी जगह रिसेशन होगा, इंडियंस विल बी देयर. ओके, सो वुड यू गिव मी दिस एश्योरेंस कि वी विल टेक केयर ऑफ इट एंड रुको रोको टोको पहले ही अपना लो ना. हम क्यों को रिहैबिलिटेशन कर जाए? आर यू विद मी? तो ये हमारी मुहिम फिर सार्थक हो जाएगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड I am really blessed that I have to be here and interaction with you so much. Thank you so much, ma'am, for such an interactive session. The audience was completely involved and will obviously follow Ruko, Roko and Toko. May I request now and have the pleasure of hearing from Dr. Pooja Singh. She is a speaker on skin cancer and assistant professor in Mayo Hospital. Presently, she is working in Ram Manohar Lohia Hospital as a dermatologist. Dr. Pooja is known for her approachable nature and expertise in hair loss, acne, eczema and psoriasis, as well as more complex concerns like skin cancer, autoimmune disease. She offers compassionate and precise medical care. Ma'am, we welcome you to the dais. Thank you. Thank you, ma'am, for the very warm welcome. एंड नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्कार. आज हम ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो आप सबने ज़्यादातर इग्नोर किया होगा. द लेस टॉक्ड अबाउट द स्किन कैंसर्स. नॉर्मली वी फील ये स्किन कैंसर्स जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होते हैं, बट अभी कुछ समय से ऐसा देखा जाने लगा है. इट्स नॉट द केस. बहुत अभी मतलब यू कैन से फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव रियलाइज्ड द अपकमिंग इन द राइजिंग केसेस इन स्किन कैंसर्स. Maybe due to environmental pollution or some changes, lifestyle changes. So it's time to know it. तो सबसे पहले सबसे important, what is skin cancer? See, skin को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपके घर की दीवार, the outer covering, your first defense. तो होता क्या है, अगर आपकी दीवार है या कोई भी कवरिंग है, उसके बाहर से एनवायरनमेंट से या किसी भी तरीके से जब इंसल्ट पहुंचती है या चोट लगती है या लगातार यू कैन से somebody hurts it, और चाहे इन्फेक्शंस हो चाहे कुछ भी हो, तो उस जगह पे घाव होने लग जाता है. और वहाँ से वो जो सेम वे वो स्किन के सेल्स भी अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं. व्हेन द स्किन इज कॉन्स्टेंटली इंजर्ड और इट रिसीव्स अ स्टिमुलाई वेदर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. सो सबसे पहले ये जानने की हमें ज़रूरत है कि स्किन कैंसर कितने टाइप के हैं, कैसे कौन से हैं. तो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर जो सबसे पहले आपसे बात करने वाली हूँ उसको हम BCC कहते हैं, तो बेसल सेल कार्सिनोमा. सबसे कॉमन होता है. स्किन इज मेड ऑफ लेयर्स. सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर होती है हमारी स्ट्रेटम बेज़ेल, स्किन की जो लेयर होती है बेज़ेल, वहाँ से ये कैंसर आता है. खास बात या अच्छी बात कह लीजिए इस तरह से है, इसका स्लो स्नीकर मीन्स बहुत धीरे धीरे से बढ़ता है, सालों साल पड़ा रहता है. दैट्स व्हाई इट्स इग्नोर्ड. कभी कभी एक मोल की तरह, एक मस्सा, एक जस्ट अनफॉरगॉटन वन, कि कुछ ऐसा निशान है जो हमें लगेगा कि अरे ये तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद अ कांस्टेंट स्टिमुलेशन, जैसे कि यूवी रेज से या किसी का जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, तो इट स्टार्ट शोइंग नॉन हीलिंग हो जाएगा. लाइक ठीक होगा, फिर से आ जाएगा, फिर से ब्लीड करने लग जाएगा. इसी तरीके से ऑफ एंड ऑन द स्लो स्नीकर, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा. सबसे कॉमनली कहाँ देख सकते हैं? सबसे कॉमन फेस पे होता है. व्हाई? क्योंकि फेस एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज है एनवायरनमेंट से. यूवी रेज का सबसे बड़ा रोल होता है सनलाइट का, इंटेंस सनलाइट, प्रोलॉन्ग सनलाइट. सो दैट्स हाउ वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर हमारे फेस पे कहीं पर ऐसा कोई मोल आ रहा है, समथिंग विच इज नॉट हीलिंग या हील होकर फिर से ब्लीड करने लग जा रहा है, तो एक बार उसको दिखा लेना ज़रूरी है. That is how it is, basal cell carcinoma, BCC. But the very good news and the positive thing is कि वो completely cure हो जाता है. Like surgical excision बोलते हैं, मतलब बहुत ही minimally invasive surgery से, जितना margin involved है, जितना बड़ा वो जो कैंसर का नोड्यूल है, वो जगह को जब हम एक्साइज कर देते हैं तो completely cure हो जाता है, spread नहीं करता. और दूसरा जो second most I'm going to talk about is squamous cell carcinoma, SCC. ये
थोड़ा सा उससे वायलेंट वन होता है। इट्स नॉट लाइक बीसीसी एट ऑल। दिखने में भी फर्क होता है। जैसे बीसीसी वो दिखता है जैसे कि कोई नोड्यूल हो, कोई मोल हो, कोई नॉन हीलिंग तिल या अल्सर ब्लीड कर रहा हो। बट स्क्वेमस सेल जो कार्सिनोमा इट्स मोर ऑफ अ पैच, कोई रफ पैच जो आपके लिप्स पे ज़्यादा मिल सकता है आपको। इनफैक्ट वो कहीं पर भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। बीसीसी का स्पेसिफिक है कि इट टारगेट्स योर फेस, ईयर्स और एक मार्जिन, मतलब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ईयर टू द कॉर्नर ऑफ माउथ, तो यहाँ इस एरिया में द चीक इट्स अ वेरी कॉमन साइट फॉर बीसीसी। बट एससीसी का कैसा है कि लिप्स तो टारगेट ज़्यादा करेगा, अदर देन दैट बैक ऑफ ईयर, जरूरी नहीं है कि ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल सामने से आपको दिख जाए। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिखने में थोड़ा फर्क, एक रफ सा स्केली पैच जिसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा पैच जो हील नहीं हो रहा या हील होकर ठीक हो जा रहा है तो उसे भी दिखवाने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट इज अगेन द सेम, सर्जिकल भी हो सकता है। क्रायोथेरेपी नाम की एक चीज़ होती है जिसमें फ्रीज कर देते हैं। कुछ टॉपिकल अब तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्रीम्स भी आ चुकी हैं, वी कैन यूज दैट एज वेल। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास लीजन्स होते हैं, प्री मेलिग्नेंट लीजन्स हम उनको कहते हैं, लाइक वार्निंग बेल्स, यू कैन से वार्निंग बेल्स। मतलब आपका बॉडी गिव्स यू वार्निंग, स्लाइट वार्निंग दे रहा होता है, बट यू कीप ऑन इग्नोरिंग। जैसे सडन अपीयरेंस ऑफ टू मेनी ब्लैक मोल्स, वैसे तो वी कॉल इट एक्टिनिक केराटोसिस और सेबोरिक केराटोसिस मेडिकली, बट आम लैंग्वेज में आपके समझने के लिए बहुत सारे, एकदम से बहुत सारे तिरों का आ जाना, यू कैन सी समवेयर अराउंड 50 to 100। सो दैट इज ऑल्सो साइन, आइदर अ साइन कि कुछ तो बॉडी के अंदर भी गड़बड़ चल रहा है, और या फिर वो जो निशान जो एकदम से आ गए हैं, वी नीड टू गेट इट चेक दैट टू। बट दे आर नॉट कैंसर पर से, मतलब उसमें अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ, बट दे हैव द पोटेंशियल। ओके, सो वो प्री मेलिग्नेंट लीजन्स होते हैं। स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट जेनाइटल लीजन्स। इसमें भी जैसे कोई भी जेनाइटल एरिया में, आपके प्राइवेट एरिया में अगर कुछ भी ऐसा लीजन है जो आपको लग रहा है कि इट्स नॉट हीलिंग या ये नया आया है, डू नॉट इग्नोर इट। और टाइम लाइन क्या रखेंगे, कब तक नहीं, एटलीस्ट मतलब आपको ये देखना है कि हाँ 1 month 3 to 4 weeks में वो कम्प्लीटली लीजन हील हो जाना चाहिए। somehow it's not happening, you need to get it checked. So pre-malignant lesions that they have the potential to turn into malignant lesions. Be very careful about it. Last but not least, a very sensitive thing, that is your human papilloma virus. HPV एक ऐसा वायरस है which definitely, और आप इसके बारे में डिटेल में सुनेंगे, बट एज पर मैं स्किन के रिलेटेड आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे बहुत आम केसेस हम देखते हैं, वॉट्स, कॉमन लैंग्वेज में मस्से कहे जाते हैं, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बिनाइन, बट देर आर सम स्ट्रेन्स विच आर कैंसरस, जिसमें हमें टेस्टिंग की जरूरत होती है। दे कैन टर्न इनटू कैंसर्स। तो जेनाइटल एरिया में स्पेशली कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो विच इज देयर फॉर द पास्ट 1 month, you should definitely get it checked. So these were the overview of what kind of cancers you can have in skin. There are so many, but these are the important and the common ones. But how to prevent or what to do about it, that is more important. First of all, make a habit of using sunscreen. We are Indians, or we need minimum of SPF is sun protection factor, which is the main constituent which you keep on seeing on the sunscreen bottles, that is SPF. So minimum of 30 SPF is important, 30 and above. So try to make a habit. It's not a girly thing. Okay, everyone should, male, female, older, young age, everyone should use sunscreen. Secondly, try to avoid a very intense sunlight for a long time, like 10 AM to 4 PM, especially in summers, a very intense sunlight is there. So you can use wide brim hats, आप फेस को कवर कर सकते हैं with the help of some cotton cloth, umbrella use कर सकते हैं. The point is not to stand in the sun for a very long time without protection. There are chances कि वो कल को it can create a problem. तो full sleeves cloth आप use कर सकते हैं. दूसरी important habit है, make a habit of checking your skin once a month. We tend to normally ignore. फेस पे पिंपल आएगा, we'll be like okay, we have to go to doctor. But कहीं बैक पे, आर्म पे, लेग्स पे, we tend to ignore these reasons कि इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं हो सकता. See, my purpose is not to scare you, but just to aware you कि okay, ऐसा भी होता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए. So make a habit at least once in a month or in a 3 month. आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहीं कुछ unusual, कोई ऐसा मोल जो आपको ठीक नहीं लग रहा हो. ठीक नहीं लगने से मतलब है it is
एटिपिकल, एटिपिकल व्हेन यू सी मतलब बहुत रेगुलर स्मूथ नहीं होगा, जैसे आप लिखकर ऐसे काट देते हैं घिच पिच का, तो इट कैन बी लाइक दैट कि अगर इसकी बॉर्डर स्मूथ नहीं है, समथिंग इज नॉट राइट, या कोई मोल जो सडनली एकदम से साइज में बढ़ गया है, देन ऑल्सो यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक। इसमें जस्ट यू विल गेट अ पीस ऑफ माइंड एज वेल कि हाँ ठीक है, आई हैव गेट इट चेक। सो ये कुछ बेसिक हैबिट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात ये है कि जैसे अपने घर में जो आपके ओल्ड एज में अगर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें भी ये बातें विंटर सेट्स इन and everyone starts sitting in this sunlight, which is not bad, which is in fact good for your skin, for your body, for vitamin D and for your mental health as well. But knowing things are also important. So you have to see them also कि okay, if they are exposed their bodies to long time, तो कुछ unusual तो नहीं हो रहा है। So मेरा पर्पस बिल्कुल डराना नहीं था। स्किन कैंसर्स को लोग नॉर्मली इस तरह से लेते हैं कि they don't know anything about it. Yes, they are there, not very common, but BCC बहुत ही राइज पे है। We see cases, इनफैक्ट अगर आप जैसे स्टैट्स में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट once or twice in a week we get cases, SCC के cases, उसके बाद BCC के cases and sometimes a pre-malignant lesion. So just to be careful is my point. तो अपना ध्यान रखें और I would like to end up with just this note: skin is your soldier, protecting you silently from so many years. The day you are born, skin is protecting you. So time to protect the skin and show it that you also care. For any queries, for anything, I'm here. If any of the audience wants to ask anything, most welcome. After the session also, if somebody wants to do anything, can ask. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an informative presentation and knowledge which you have shared with us. We are now open floor for an interactive session. Participants may raise their questions to our speakers and let's make the most of this opportunity. If you have any doubt, any question, our student volunteers will reach to you with mics. You may please question us. एनल कैंसर और जेनाइटल कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। तो जो WHO का रिकमेंडेशन है फॉर वैक्सीन, इट इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज़ ऑल्सो फॉर द बॉयज़। ठीक है, ये बात ज़रूर है कि इंसिडेंस सर्वाइकल कैंसर का ज़्यादा है। तो जब हम कोई प्रोग्राम के लिए कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं तो उसमें ये होता है कि पहले लड़कियों को लगा दें, बट अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद के लगा सकते हैं, तो इट इज़ इक्वली रिकमेंडेड फॉर बॉयज़। क्योंकि बहुत खतरनाक है ये बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए रोको टोको या आई ऑल्सो लाइक इट, तो वैक्सीन लगाओ ऐसा। Thank you so much, ma'am. Let us now affirm. Any questions from the audience? Let us now affirm our commitment to spreading awareness and supporting those affected by cancer. Please rise for the awareness pledge and repeat after me. I request all of you to please rise and repeat after me. On this National Cancer Awareness Day 2025, I pledge to prioritize my health by eating a balanced diet and staying physically active. I pledge to spread awareness, combat myths, and stand in solidarity with those affected by cancer. Together, we can work towards a future where cancer is prevented, detected early, and fought with hope and compassion. Thank you all. You may please take your seats. To conclude the further proceedings, may I now invite Director, Institute of Pharmaceutical Sciences, Professor Pushpendra Kumar Tripathi sir, to deliver the vote of thanks. Sir, please. Thank you, Dr. Pranit. आप सभी को इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए पहली बात तो सभी साथियों को धन्यवाद। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अहम प्रोग्राम था जिसमें सबकी भागीदारी आवश्यक थी और ज़रूरी थी। उसके लिए मैं प्रारंभ करता हूँ। ये मेरा छोटा सा कर्तव्य है कि धन्यवाद देना है उनको।
तो मैं सबसे पहले उसी को धन्यवाद देता हूँ जिसने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, डॉक्टर रूपल। उन्होंने मुझे बहुत भाई साहब कहा, तो बहन रूपल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये सेलेक्ट किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में स्पेशली हमको अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे कहना चाहिए जो प्रोफेशन है उसके जो मेन स्टेक होल्डर है और जो हमारे पैशन के लिए हम लोग गुरु ही समझ सकते हैं, डॉक्टर्स को लेके आप आई और उनको हमसे इंटरेक्ट कराया और एक महत्वपूर्ण दिन के दिन इतने लोगों को जागरूक किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जब भी आपको ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता हो, क्योंकि मैंने आपका वो बहुत डिटेल बुक पढ़ी, ना सिर्फ कैंसर पर, आप बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कराते हैं जो समाज को सुधार के लिए आवश्यक हैं, उस सब के लिए हमेशा ये विश्वविद्यालय और ये विभाग आपके साथ हमेशा खड़ा दिखेगा। आपको बता दूं कि अभी ये नया ही सत्र है, जुलाई से स्टार्ट हुआ और जुलाई से ये नवंबर का पहला ही वीक है। इसमें लगभग हम ऐसे बड़े 4 प्रोग्राम अवेयरनेस के कर चुके हैं। उसमें 60 वैक्सीनेशन एचपीवी फॉर मेल एंड फीमेल ऑफर, द होल डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी 60 वैक्सीन डोनेट कराई गई और उसको विश्वविद्यालय का कोई पैसा नहीं लगा है, सब डोनेट कराया गया और वो वैक्सीनेटेड बहुत सारे बच्चे यहाँ के हैं और बाकी जगह के हैं, ताकि लोगों को पता चले। और उस समय एक बहुत अच्छी बात हुई, न्यूज़पेपर पढ़कर एक पीजीआई के पास एक छोटी बच्ची को लेकर उसके फादर आए कि मुझे कैंसर हो गया था लेकिन मेरी बच्ची को ना हो, तो प्लीज डॉक्टर इनको लगवा दीजिए, और वो दोनों डोज ले चुकी है यहाँ। तो being a part of health care system, being a part as a paramedical whatever, but being a part, this social responsibility are real. So ORS डे हमने सेलिब्रेट किया। डॉक्टर यहाँ मैं मिला उनसे, जो CMO साहब है, उन्होंने कहा इसमें आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा वो कर सकता हूँ जो आपके आहट वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं। 3 घंटे में 1000 के ऊपर ORS उनके घर पहुँचाए और आपको फोटो दिखा सकता हूँ उनकी सारी आशाओं को, जितनी मैंने सबको फेलिसिटेट किया यहीं पर, और वो सबको एनर्जी फुल किया कि भविष्य में पूरे 1 साल वो काम कर सके। और ORS से बहुत सारे काम रोके जा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां रोकी जा सकती हैं, इन्फेंट डेथ रोकी जा सकती है। तो वी हैव डन ऑलरेडी। दूसरा प्रोग्राम लगातार हर महीने का कैंसर डे सेलिब्रेशन का एक टीचर डेजिग्नेटेड है और वो लगातार करा रहे हैं। लंग कैंसर मंथ था सितंबर, जिसमें अवेयरनेस होनी चाहिए थी। मैं थैंक यू सर, डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर का, जिन्होंने इतना विस्तृत हमारा वो कार्यक्रम भी आज कंप्लीट किया, क्योंकि हम लगातार चाह रहे थे कि एक एक्सपर्ट आए और लंग कैंसर भी हमारा सेलिब्रेट हो जाए, लेकिन वो यहाँ कंप्लीट नहीं होता। मैं उनसे फर्दर निवेदन करता हूँ, इस सिर्फ स्पीच और इससे काम नहीं चलेगा, वो जो आइडेंटिफाइड करें, उनको समझाएं और कम से 5 से 10 लोगों को छुड़वा दें। सो प्लीज़ अगर आप हमको कोऑपरेट करेंगे, हम यहाँ रजिस्टर्ड कराएंगे ऐसे लोगों को जो लगातार यूज़र हैं और वो छोड़ना चाहते हैं। सो अगर ये हेल्प एक्सचेंज होती है आपकी तरफ से, तो वाकई आज का दिन और ही अच्छा होगा। सो थैंक यू सर, आपने आज बहुत ही विस्तृत लंग कैंसर पे अपना एक्सपर्टीज बताई। दूसरा एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि 3000 रुपये से कैसे करोड़पति बन सकते हैं, वो वाकई सबको टच की है। मैं टीचर को भी बोला कि इसको मीडिया तक जरूर पहुँचाया जाए। दूसरा एक बड़ा अच्छा टॉक था सर्वाइकल कैंसर का। मैडम ने बहुत ही अच्छा डिटेल प्रोग्राम बताया कैसे किया जा सकता है। नॉट ओनली द फीमेल गर्ल्स, और मेल को भी इस पे आगे बढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने साथियों को सब में हेल्प करके उनको कराना चाहिए। देखिए आज कैंसर इतनी भयानक स्थिति में है कि पहले हम दूसरे को सुना करते थे, आज आदमी बाजू या आपकी पड़ोसी में, आपकी फैमिली में एक पेशेंट है, और वो सिर्फ रीजन हमारी रोज की दिनचर्या, हमारी ईटिंग, हमारे हैबिट्स, यही उसका मेजर रीजन है और उसको सुधार होना चाहिए। उस पर लगातार मैडम ने, सारे स्पीकर्स ने उस पर बात करी थी। स्किन कैंसर में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छी बात बताई थी। स्किन सबके लिए सिर्फ ब्यूटीफाई करने की जगह नहीं है। मैं लगातार मैं भी एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, दिस इज द मेन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ योर होल बॉडी। कि आप पूरी बॉडी को उसके बिना कैसे चल फिर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, इतना सारा आपका वेट लिए घूम रही है। सबसे बड़ा एरिया कवर करने वाला एक पूरा सिस्टम है, उसको हेल्दी कैसे बनाएं, मैडम ने बहुत ही विस्तृत किया और बहुत ही अच्छा दिया। तो उन्होंने टॉक बहुत अच्छी थी और लास्ट का टॉक तो बहुत ही इंटरेक्टिव था। तो रोको टोको, लेकिन आजकल इसमें दुनिया नहीं चल रही है।
दूसरे को रोको, दूसरे को टोको और आगे बढ़ो। तो प्लीज़ मैडम की बात सुनिए, आप हर जगह दूसरे के रोको में लगे, दूसरे को टोकने में लगे। प्लीज खुद को रोको, खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। चौराहों में भीड़ नहीं खत्म हो रही, एक गाड़ी दूसरे को लगाए पड़ी, सब आगे बढ़ रहे हैं। खुद रोक, दूसरे को रोको, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑल दिस इज अ वंडरफुल सेशन और आप सभी का यहाँ आने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी से, हमारी फैकल्टी से, पूरी संस्था की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मेरी इच्छा है, देखिए विभाग पैरामेडिकल जरूर है, लेकिन आप बिलीव भी करते होंगे कि सारी डिसीज का क्योर वो छोटी सी दवाई पे ही छुपा है। और वो ड्रग इज द ओनली पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन अ मेडिसिन, दैट इज अ फार्मासिस्ट। बट ये उनकी जिम्मेदारी है फार्मासिस्ट की कि वो उसका नॉलेज उस लेवल पे रखें कि वहां तक आपको पहुंचाया जा सके। आज मैं प्राउडली कह सकता हूं, मैं पूछता हूं फर्स्ट ईयर के बच्चों से कि आज अगर कंप्यूटर साइंस या उसके लिए हाई स्पीड होगा तो आज फार्मा का सबसे पेड दिन क्या होगा। मेरा साथी है जो एक दिन का 2 लाख पर डे की सैलरी है। आप हिसाब लगाइए कि 7 करोड़ और 8 करोड़ का पैकेज उठा। तो वेयर आर यू? हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमको सिर्फ लेक्चर सुनने में मजा नहीं आया, हमको अपनी जिम्मेदारी, अपना नॉलेज, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। यूएस में या किसी बाहर डेवलप्ड कंट्री में दवा बिना फार्म डी मैन के बिना ले नहीं सकते। 90% इंडियन जो बाहर रहते हैं इंडिया से दवाई लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ दवाई लेने ही आसान नहीं, क्योंकि फार्मेसी वाले के पास पहुँचना ही पड़ेगा। तो ये सारे यदि एडवर्स रिएक्शंस, दवाई का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी क्वालिटी कंट्रोल, हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो हमारे फ्रंट वर्कर डॉक्टर्स जो हैं वो और अच्छा इलाज कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ हमारे पास नॉट ओनली द B.Pharm कोर्स, वी आर हैविंग द गुड फैकल्टी from excellency centers of all whole India, from IIT BHU, from NIPER, from CDRI, from Central University. They are doing regular research on cancer and nasal tuberculosis, stomach tuberculosis. आपके पीछे बैठी हैं वो stomach tuberculosis पे काम की। तो मेरा खुद का नैनो पे बहुत आप पेपर पढ़ सकते हैं। आप मैडम जो प्रॉब्लम यदि आपको ट्रीटमेंट में आती है, अगर हम लोग बैठ के वो प्रॉब्लम डिस्कस करें कभी कि नहीं यार कोई ऐसा फॉर्मुलेशन बना दी जो सर्वाइक्स टाइम में वहाँ रुक ही जाए, या हमारे लंग्स में क्यों नहीं इतना एब्जॉर्ब होता है, वॉल्यूम टाइटल बढ़ा हुआ था, तो हो सकता है हमको कुछ रोशनी मिले और हम उस पर काम कर सकें। तो इन फ्यूचर हम आपका कोऑपरेशन चाहेंगे। थैंक यू, आप सब आए थे और ये वंडरफुल सेशन था, याद रहेगा इस सभागार को। थैंक यू इस बच्ची सभागारों पर। आप सभी को मैडम की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है और आप पी के जरूर जाएँ। थैंक यू। और एक सॉरी रह गया था, मेरे डीन साहब बहुत यंग आए हैं और आप बिलीव करिए ही जस्ट ज्वाइन बिफोर 50 डेज भी नहीं हुआ, अभी हफ्ता भर हुआ है। और ही इज अ क्यूरियस टू लर्न। 12 साल साउथ कोरिया में रहे, ही इज अ वेरी यंग, रिटर्न यूनिवर्सिटी आ गए, पूरा लेक्चर सुना आपका और एक एक लेक्चर पे उनकी इच्छा थी कि इस बात पे इस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो ये इच्छा अगर हर बच्चे में आ जाए मेरे डीन साहब जैसी, तो देखिएगा ये समाज जरूर सुधरेगा। थैंक यू सर, आपका यहाँ रहना बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लगातार बने रहेंगे। थैंक यू। को तो मैडम ने यहाँ पुरस्कार दिया था, उनको तो बोलना बहुत जरूरी है, मैं जल्दबाजी में रहता हूँ। 4 को तो उन्हें पुरस्कार दिया, लेकिन बैकबोन की जो टीम थी हमारी बहुत तगड़ी है। आप देख रही हैं कहीं इतने बच्चे बैठे हैं, लगातार सिस्टम चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। वो नीचे से लेके ऊपर तक सब 24 घंटे काम करते हैं। उन सबको जो इस कार्यक्रम में लगे हैं कल से, उन सबको मेरे दिल से हार्दिक बधाइयाँ और बहुत सारा आभार। और ऐसे प्रोग्राम हम रोज करते रहेंगे। और ये 2 दिन में मिला था, हमको 1 दिन पहले भी प्रोग्राम मिलेगा तो हम ऐसे ही करके देंगे। थैंक यू सब आपके सहयोग के लिए। As we draw curtains on today's events, I request all of you to rise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब